हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन किया था कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर x इक्वल v अपॉन एल, एल की वैल्यू 1 पुट की थी, x की वैल्यू v आई थी। सो नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। So we can we write unit of potential gradient. The SI unit of potential gradient So how can you write a unit of potential gradient? Formula is by using principle of potentiometer, V equal XL or X equal V upon L. Then potential drop measured in volt and length is measured in meter. So unit will be volt per meter. So this is volt per meter. ये हमारे पास में जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट हो गई, बट इट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और पोटेंशियल ग्रेडियंट की सेम यूनिट है, तो फिर क्या है ये? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो सेम है। नाउ यू कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। सो हाउ कैन यू राइट? वोल्ट जूल पर कूलम into meter. Clear? What is volt? Volt is joule per coulomb. So dimensional formula of joule m1 L2 T minus 2. Now coulomb 80 ampere into time, meter L. So one L is cancelled out. So we can collectively M1 L1 T, 1 है ऊपर जाएगा तो एक और -1 T minus 3 A minus 1. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फिर अगले वाली बार डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल gradient M1 L1 T minus 3 A minus 1. Clear? But now we will study what are factors on which potential gradient x depends. कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर x डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स जो किसको इफेक्ट करते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो कैसे करेंगे? देखिए, फैक्टर्स on which potential gradient depends. Factors on which potential gradient depends. देखिए कैसे क्या जाएगा? We know that potential gradient x equal V upon L.
by using principle of potentiometer, you can write as x equal V upon L, or V equal IR. So by using Ohm's law, we can write as x equal IR upon L. This is equation first. I flowing current, I current, R resistance of potentiometer wire, resistance of PM wire, potentiometer wire, L length. But I equal in a primary circuit, components are connected. What are components? This is battery of EMF EP, key, rheostat, and potentiometer wire. Clear? AB, RH, plus minus. So how can you write flowing current through this circuit, which is equal to I? I equal V upon R. So how can you measure I? EMF of battery is EP. So by using Ohm's law, to EP upon me total resistance of the circuit. Total resistance of the circuit is, this is capital R, resistance of potentiometer wire, plus this is R dash, resistance of rheostat, and this is internal resistance small r of cell. This is equal to I. This is equal to 2. So we can write EP, EMF of cell in primary circuit. Cell in primary circuit. Primary circuit. R मेंशन हो चुका, R डैश रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस of cell EP. Clear? So by using first and second, what is the result? X equal EP upon R plus R dash into plus में R into में R by L. This is equation थर्ड. ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई. But we apply a condition if internal resistance of the cell to be 0 means battery is ideal. R dash equal 0 means rheostat is neutral in this, to be neutral in this circuit. तो फिर यहां मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूं. तो यू कैन लुक हियर, क्या कंडीशन क्या अप्लाई की? इफ R इक्वल 0 एंड R डैश इक्वल 0, then by using equation third, what is the result?
x इक्वल EP अपॉन में R प्लस जीरो इंटू R बाई L, where R is cancel out, x इक्वल EP अपॉन में L. This is equation 4. This is equation 4. Then equation 4 tells us कि when battery to be ideal, rheostat to be negligible, in this situation x depends only EP and L. क्या EP और L पर डिपेंड करती है. तो पहले ही तो बात हमारे पास में ये आ गई, लेकिन एक और हम रिजल्ट पे आते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं. वो क्या है, नेक्स्ट है उसके ठीक बाद में, फोर्थ के बाद में यहां लिख रहा हूं, बट R इक्वल रो L अपॉन E एंड R अपॉन L इक्वल रो अपॉन E. दिस इज इक्वेशन 5th. If we put this equation 5th in equation 1st, तो by using first and 5, by using first and 5, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, x इक्वल I इंटू में रो अपॉन में E. दिस इज इक्वेशन 6. और 6 क्या सजेस्ट करती है कि x जो है वो किस किस पर भी डिपेंड करता है. x इज प्रोपोर्शनल I, प्रोपोर्शनल रो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल E. ठीक है, तो एक तो हमारे पास में जो है ये इसकी डिपेंडेंसी आ गई. तो फिर रिजल्ट क्या मिला हमें कि जब हमारे पास में ये चीज कि EP जो है R0 और R' हो, तब तो x सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. इसके अलावा x जो है किस किस पर डिपेंड करती है, फ्लोइंग करंट I, रो और जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है. तो फिर ये जो है आप चीजें यहां से लिख सकते हो कि x किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. ये सारी चीजें इसमें आ गई है. यहां से हमारे पास में x किस पर डिपेंड करती है, EP और L. तो फिर इन दिस कंडीशन, इस 4 के नीचे हम ये लिख सकते हैं, इन दिस कंडीशन x डिपेंड्स, इन दिस कंडीशन x डिपेंड्स on upon EP and x depends upon EP and L, upon EP and L. क्लियर. और इसके अलावा ये x किस पर डिपेंड करती है, I, रो और E पर डिपेंड करती है. तो अब आप इसे जो है वो नोट कर सकते हैं. ये तो हमारा आर्टिकल हो गया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स. नाउ नेक्स्ट हमारे पास में बात क्या आती है, वो है प्रिकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस माइंड में रखनी चाहिए. प्रिकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर. Precautions with potentiometer. कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें इस एक्सपेरिमेंट में माइंड में रखनी चाहिए. नंबर फर्स्ट, पहली प्रिकॉशंस क्या है कि द EMF ऑफ
cell in primary circuit must be greater than EMF of cell in secondary cells. जो भी प्राइमरी में हम जो सेल लगाते हैं वो सेल जो है वो ज्यादा ईएमएफ का होना चाहिए बजाय सेकेंडरी के। देखिए किस तरीके से, तो पहले तो हम ये लिख ले सकते हैं द EMF of cell in primary circuit, the EMF of cell in primary circuit must be greater than EMF of cell in the secondary circuit. क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि जिससे कि बाई विच बैलेंस पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड सर्किट, बाई विच बैलेंस पॉइंट could be obtained at PM wire, potentiometer wire, by which balance point could be obtained at potentiometer wire. कैसे एक्सप्लेन करें? सपोज दिस इज प्राइमरी EP, this is key rheostat, and this is potentiometer wire AB. Now suppose this is 6 volt battery, then there will be 6 volt available on this wire, and if we connect this is another battery of 12 volt, तो 12 वोल्ट कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय 6 वोल्ट बैटरी। यदि हमारे पास में 3 वोल्ट होते इस बैटरी की, तब तो मिड पॉइंट के अंदर हमें 3 वोल्ट मिल जाते, तो ये इससे बैलेंस हो जाता। लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी यदि सेकेंडरी में लेंगे तो हमें वायर के ऊपर कितनी वोल्टेज अवेलेबल है? मैक्सिमम 6 वोल्ट तक अवेलेबल है, तो फिर बैलेंस पॉइंट नहीं आ पाएगा। इसलिए सेकेंडरी में जो है, प्राइमरी में जो बैटरी है उसका ईएमएफ इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो यही बात है कि द ईएमएफ ऑफ सेल इन प्राइमरी सर्किट मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल इन द सेकेंडरी सर्किट, बाय विच बैलेंस पॉइंट कुड बी ऑब्टेन एट ए पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर? नाउ व्हाट इज सेकंड पॉइंट? सेकंड प्रिकॉशंस हमारे पास में क्या है? ये सेकंड प्रिकॉशंस है कि हमें इसमें जो है वो काफी टाइम तक जो है करंट फ्लो नहीं करवानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो है, जितने भी सेल्स हम यूज में लेते हैं सर्किट में, उन सब के पॉजिटिव टर्मिनल्स जो हैं वो ए पर कनेक्टेड होने चाहिए। तो फिर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स must be connected at terminal A। सभी पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर कनेक्ट होने चाहिए? ए पर। must be connected at terminal A, and distance to be measured from A, and balance distance and the balance distance and the balanced
balanced length to be measured from terminal A, from terminal A मापी जानी हो। तो फिर एक तो सभी पॉजिटिव टर्मिनल वहां कनेक्ट होने चाहिए, और एक बैलेंस्ड लेंथ जो होती है उसको कहां से मेजर करना चाहिए, करें फ्रॉम टर्मिनल ए। दूसरी प्रिकॉशंस। अब हम थर्ड प्रिकॉशंस पे आते हैं कि तीसरी तो पहले क्या थी कि प्राइमरी सर्किट में ज्यादा ईएमएफ की बैटरी लें सेकेंडरी से, जिससे कि बैलेंस पॉइंट वायर पे आ सके। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास में ये है कि सभी जो सेल्स हम लगाएंगे इस पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में सभी के पॉजिटिव टर्मिनल ए पे जाने चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस की मेजरमेंट, बैलेंस जो लेंथ आएगी उसकी मेजरमेंट कौन से पॉइंट से करनी चाहिए, पॉइंट ए से या टर्मिनल ए से करनी चाहिए। तो व्हाट इज थर्ड प्रिकॉशंस क्या है। तो फिर थर्ड प्रिकॉशंस है कि करंट जो है मस्ट नॉट बी फ्लो ए लॉन्ग टाइम पीरियड बाय विच वायर बिकम्स हॉट एंड resistance of wire changes and potential gradient changes, but potential gradient must be constant। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो थर्ड प्रिकॉशंस वो क्या है, थर्ड प्रिकॉशंस है the current must not be flow for a long period of time in a potentiometer wire, potentiometer wire। तो current must not be flow for a long period of time in a potentiometer wire by which PM wire becomes hot and its resistance changes, its resistance changes and potential gradient also changes, but potential gradient must not be changed। तो यहां आपने देखा कि करंट मस्ट नॉट बी फ्लो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन ए पोटेंशियोमीटर वायर बाई विच क्या होता है, पीएम वायर बिकम्स हॉट हो जाता है एंड इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आल्सो चेंजेस, वो भी चेंज होता है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या नहीं, मस्ट नॉट बी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्ट नॉट बी चेंज। चलिए सिमिलर वे में हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ प्रिकॉशंस क्या है कि जो जॉकी है उसको हम ड्राइव न करें कैसे, उसको रगड़ करके नहीं चलाएं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो है वो एक बार फिर से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने से मैंने बताया था कि एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर डोंट रब jockey, don't rub jockey with PM wire while taking readings
taking readings, because on rubbing the cross sectional area changes and potential gradient also changes, but potential gradient must not be changed. तो फिर ये हमारे पास में कुछ प्रिकॉशंस हो गई जो हम एक्सपेरिमेंट को करते समय ध्यान में रख सकते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आती है बात, अगले वाला आर्टिकल है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो राइट डाउन नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। Standardization of potentiometer। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि किसी स्टैंडर्ड सेल की हेल्प से पोटेंशियोमीटर वायर का की पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्ञात करना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर कहलाता है। टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए potentiometer with the help of to find out exact potential gradient, EXACT, to find out exact potential gradient of a potentiometer with the help of a standard cell is known as standardization of पोटेंशियोमीटर। क्या बताया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना किसके हेल्प से? स्टैंडर्ड सेल की हेल्प से। स्टैंडर्ड सेल हमारे पास में कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड सेल है डेनियल सेल, जिसका ईएमएफ हमें स्टैंडर्ड किया गया हो, जैसे ईएमएफ जो है डेनियल सेल है, कैडमियम सेल है, इनको स्टैंडर्ड सेल कहा गया है। तो फिर सर्किट डायग्राम क्या होगा? सर्किट डायग्राम तो कैसे बनाए सर्किट? देखिए, सर्किट डायग्राम, ये हमारे पास में बैटरी ईपी इन प्राइमरी, दिस इज की, दिस इज रियोस्टेट RH, or this is potentiometer wire. We have to find out value of X of this wire. Flowing current, suppose this is I. Now we connect
and a secondary cell, a standard cell in this circuit whose EMF ES is known. Clear? This is galvanometer. Point A, this is point B. बैलेंस लेंथ LS फॉर सेल ES, ये बैलेंस लेंथ। यहाँ गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता क्योंकि वायर के ऊपर टोटल जो है हमारे पास में कुछ वोल्टेज बिखरे हुए थे, वो वोल्टेज इससे बैलेंस हो गए थे लेंथ के पोटेंशियल से। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ PM, क्या यहां से ES इक्वल XLS, क्योंकि V इक्वल XL तो यहाँ E है, तो ES इक्वल XLS और X इक्वल ES अपॉन में LS के लिए। तो फिर ES क्या है? EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल, EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल, जैसे डेनियल सेल EMF ES इक्वल 1.08 वोल्ट, ये हमें नॉर्म है। और LS हमने किससे ली? एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर ले। तो LS बैलेंस लेंथ फॉर सेल ES, ये बैलेंस लेंथ होगी। तो X की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि नहीं होगी? इस तरीके से हम एग्जैक्ट S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपका यही खत्म होता है। थैंक यू।